Good morning, all of you. I am Sharik sir, and today I am going to teach you a very good poem with the title The Patriot. If we talk about the poem Patriot, it is written by Robert Browning and it is a dramatic monologue. What does the term dramatic monologue mean? Dramatic monologue here refers a dramatic form description about a person, which here you will find that the speaker a critical situation which he has faced. So it is a dramatic monologue, and if we talk about the poem describes the fickle mind people, because the poem describes the rise and fall of the heroes, okay, and in which this rise and fall is due to the fickle mind of the people. Fickle means the attitude of the people which frequently changes. Sometimes they become very loyal towards someone, very pleasing towards someone, and then on the other hand they become very opposite. Okay, so this type of nature or mentality, fickle people, is mentioned in this poem. Okay, that how type varying nature people have. ठीक है, कि लोगों को कितना ज्यादा एटीट्यूड चेंज होता रहता है किसी की तरफ, उस चीज को डिस्क्राइब किया गया है. अब इस पोएम में अगर बात करें तो राइज एंड फॉल ऑफ अ हीरो की बात की गई है कि कैसे एक हीरो कभी राइज करता है, फॉल करता है. एज इन इटली ड्यूरिंग इट्स फ्रीडम प्री मेच्योर फ्रीडम स्ट्रगल इन ऑर्डर टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ऑस्ट्रिया. ठीक है, प्री मेच्योर बिकॉज बिफोर टाइम, they have struggled before time for achieving their freedom from Austria during the year 1941 to 1949. So there was a freedom struggle by Italy. So there many heroes had been rise and fall during that time. So the poem describes such heroes in this poem. ठीक है, तो पोएट ने इसी कुछ हीरोज की यहाँ पे बात की है ऑन अ जनरल वे में, कि किस तरीके से एक फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे हीरोज का राइज और फॉल होता है लोगों की चेंजिंग एटीट्यूड्स की वजह से, चेंजिंग मेंटालिटी की वजह से, कि कभी कोई बहुत हीरो बन जाता है, कभी वही सेम पर्सन क्या हो जाता है, विलन हो जाता है लोगों की फिकल माइंड की वजह से. ठीक है, सो नाउ वी विल गो लाइन बाय लाइन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. इट वॉज रोजेज एंड रोजेज ऑल माई वे विद मार्टिल mixed in my path like mad. So the patriot right now is recalling or remembering 1 year back time when he was very warmly welcomed by his people like a hero. So all over the path roses were strewn, मतलब were thrown into his path. जैसे कि वेलकम करने के लिए आप गुलाब राहों में बिछा दें, तो ऑल ऑन हिज पाथ रोजेज वर स्ट्रून अलॉन्ग विथ, मतलब इट वॉज मिक्सड विथ, नॉट देयर वॉज नॉट ओनली रोजेज बट इट वॉज मिक्सड विथ मार्टेल. व्हाट इज मार्टेल? मार्टेल इज अ ग्लॉसी एवरग्रीन शब्स विथ पिंक एंड व्हाइट फ्लावर्स. ठीक है, पर्पल व्हाइट पिंक फ्लावर्स के साथ एक ग्लॉसी शब्स होती है एवरग्रीन, उसी को मार्टेल कहते हैं. तो इट वॉज ऑल मिक्सड विद मार्टेल अलॉन्ग विद रोजेज ओवर माई पाथ. ठीक है, कि लोगों ने लाइक मैड, मतलब पीपल वर ऑल मैड अबाउट मी, दे वर सो मच फॉन्ड ऑफ मी, दे वर सो मच एक्साइटेड दैट दे हैव ऑल थ्रोन ओवर माई पाथ रोजेज एंड मार्टेल. द हाउस रूफ मीन्स हाउस टेरेस, हाउस बिल्डिंग, सीम टू हीव एंड स्वे, मतलब here the term heave means rise and sway means to and fro, है ना. So the crowd was gathered so much over the terrace, over the top of the buildings, that it seems due to the crowd that the house terrace seems to heave and say, that it was rising and moving to and fro. मतलब people were so much rejoicing over the terrace that the terrace seems to rise, and it seems that it was also moving with the crowd. The church spires here refers to top of the building. Church spires flamed such flags they had, मतलब they have decorated the church building too with such a glorious flag, with such a shining flags,
such a flaming color flags that it seems that it itself starts burning or it was shining so much. तो इस तरीके के फ्लैग उन्होंने चर्च की बिल्डिंग पे लगा के डेकोरेट किया था, सेलिब्रेशन मना रहे थे मेरे रिटर्निंग का 1 साल पहले, ईयर अगो, कि चर्च की बिल्डिंग भी फ्लेम्ड हो गई थी, ग्लोड कर गई थी, बर्न करने लगी थी, जलने लगी थी, एकदम चमकने लगी थी. इस तरीके के झंडे उन्होंने, फ्लैग्स उन्होंने लगाए थे डेकोरेट करने के लिए. अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, 1 साल पहले इसी दिन पर, ठीक है. द एयर ब्रोक इनटू मिस्ट विद बेल, द ओल्ड वर्ल्ड रॉक विद द क्राउड एंड क्राइज. सो मिस्ट हियर रिफर्स टू इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है. तो हियर पोएट हैज combined the imaginary vision with the sound. मतलब it all seems like a dream for the patriot. ठीक है. इतना ज्यादा वहां पर साउंड से, इतने ज्यादा बेल की साउंड थी, इतनी ज्यादा सेलिब्रेटिंग साउंड थी, सेलिब्रेटरी एटमॉस्फेयर था कि वो मिस्ट में बदल गया था, एक विजनरी माहौल में बदल गया था. पीपल के जो वहां पे क्राउड्स थे, दे वर शाउटिंग सो मच, दे वर चेयरिंग सो मच, देयर वाज द बेल वाज रिंगिंग दैट टाइम. सो द एटमॉस्फेयर वाज ऑल कन्वर्टेड इनटू एज विजनरी, मतलब इतना ज्यादा विजनरी एटमॉस्फेयर में पूरा बदल गया था. द ओल्ड वाज रॉक विद द क्राउड एंड क्राइज एंड द ओल्ड वॉल्स, द ओल्ड बिल्डिंग्स एंड द ओल्ड वॉल्स ऑफ द, कह लीजिए बाउंड्रीज, आप कह सकते हैं वहां पे रास्तों में जो भी बाउंड्रीज थी, ओल्ड वॉल्स थी, ओल्ड बिल्डिंग्स की जो भी वॉल्स थी, इट वॉज ट्रेम्बलिंग, इट वॉज शेकिंग ड्यू टू द क्राउड एंड क्राइज. मतलब पीपल वर सो मच एक्साइटेड, दे वर चेयरिंग सो मच, दे वर सो मच celebratory atmosphere all around that people were cheering so loud that the walls of the old buildings or the old walls were also trembling due to the echoed or due to the sound of the, due to the vibration of the people cries. लोगों की चीख से जो वाइब्रेशन निकल रही थी चेयरिंग से, तो उससे पुरानी दीवारें भी हिल रही थी. Had I said good flock, and if I tried to address the people by saying good people, good flock, good crowd, mere not ripple, मतलब it will only ripples my noise because people were so much shouting that my noise will also ripple in this all noise. मतलब वो आवाज का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि लोग इतना ज्यादा चीयर कर रहे हैं. अगर मैं उनको एड्रेस भी करना चाहूंगा तो मेरी वॉइस टकरा के वापस आ जाएगी, रिपेल कर जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा. मतलब इतनी भीड़ में, शोर में मेरा अगर मैं एड्रेस भी लोगों को करना चाहूं तो दे वर सो मच एक्साइटेड दैट दे वोंट बी एबल टू लिसन माई वॉइस टू, मेरी आवाज तक वो सुन नहीं पाएंगे. बट गिव मी योर सन फ्रॉम यॉन्डर स्काई, फिर भी अगर मैं उनसे कह देता कि गिव मी द सन फ्रॉम दैट स्काई, यॉन्डर पॉइंट आउट करने के लिए होता है टू दैट स्काई, अगर उस आसमान से मुझे सूरज ला के दो, इफ आई टोल्ड देम, दे विल आंसर दैट एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स. तो वो लोग जवाब क्या देते, वी विल ब्रिंग यू द सन and please tell me that what you need after that. Means people that time was ready or agreed to do any impossible task for that patriot. मतलब they were so much valued that person, they so much respect, they so much valued patriot that they were trying to do any impossible task. मतलब patriot is saying that if I asked them to bring the sun for me, they were readily or agreed to do that thing too. Means they were, that time they were so much charmed of me. मेरी तरफ इतना ज्यादा चार्म थे, फॉन्ड थे मेरे, इतना ज्यादा मुझे पसंद करते थे कि वो मेरे लिए साल भर पहले अगर मैं कहता सूरज ला के दे दो तो वो मुझे लाकर दे देते. To give it to my loving friends too. Alack, it was I who leaped at the sun. Alack, here it is a exclamatory word used for sorrow, अफसोस. जैसे आप कहें ना alas, alack. तो alack, alas, it was I who leaped. Leaped here refers to jumped. Who jumped at the sun to bring or to give it to my loving people to keep it. Means what the patriot is saying, अफसोस, पर अफसोस ये है कि वो मैं था
It was I who jumped at the sun to bring it for my loving people. मतलब पर वो मैं था जिसने इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल टास्क परफॉर्म किया, किसके लिए? फॉर माई लविंग पीपुल. नॉट मैन कुड डू have I left undone, not a thing I have left undone which a man can do. मतलब विद इन द ह्यूमन कैपेबिलिटी, इंसान की कैपेबिलिटीज में जितना एक इंसान अपनी ताकत में, इंसानी कुव्वत में कर सकता है, इंसानी कैपेबिलिटीज में कर सकता है. आई डिडंट लेफ्ट एनीथिंग अनडन. ऐसी कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए. फॉर माई लविंग पीपुल मीन्स आई हैव डन एवरीथिंग फॉर माई लविंग पीपुल. एंड यू कैन सी my harvest, what I reap, that very day now I year run. And but now you can see the result, what I gain in return for doing so much impossible tasks and for doing everything for my loving people. You can see the result, what I gain from all that when a year is passed away. So here the patriot is talking about the fickle type of people whose attitude, mentality change very frequently. कि अभी साल भर पहले क्या था, वो लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग कर रहे थे, उसको वार्म वेलकम कर रहे थे, रोजेस बिछा दिए थे, चर्च की बिल्डिंग पे लोग जो है लोग गैदर्ड थे, पीपल वाज गैदर्ड देयर, दे हैव डेकोरेटेड द होल टाउन इन वेलकमिंग टू वेलकम द पेट्रियट, है ना. दे वर वेरी मच जॉयफुल, दे वर सेलिब्रेटिंग दैट इवेंट वेरी मच, दे वर ऑल चेयरिंग एंड अपलॉजिंग फॉर द पेट्रियट. वो लोग क्या कर रहे थे? चीयरिंग और अपलॉजिंग कर रहे थे. बट नाउ व्हेन द ईयर हैज बीन पास, देयर ऑल एटीट्यूड हैज बीन चेंज्ड फॉर द पेट्रियट. उस पेट्रियट के लिए पूरा एटीट्यूड जो है वो क्या हो गया, लोगों का अचानक से साल भर में ही क्या हो गया, चेंज हो गया. वही सेम पर्सन को अब वो लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए ले जा रहे हैं, किल्ड करने के लिए ले जा रहे हैं. There's nobody on the housetops now. अब वो कंपेयर कर रहा है ऑन द सेम डेट आफ्टर अ ईयर हैज बीन पास, उसी सेम डेट की बात कर रहा है, या साल भर जब बीत चुका है तो लोगों का ट्रीटमेंट देखिए उसके साथ कैसा है. देयर इज नाउ नोबडी ऑन द हाउस रूफ. अब वो स्ट्रीट से पास करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, लोग उसको स्ट्रीट से ले जा रहे हैं, ठीक है. बट देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स. हाउस की टॉप्स पे, टेरेस पे अब कोई भी वहां पर नहीं है. जस्ट अ पैलसाइड फ्यू एट द विंडो सेट. ओनली फ्यू पीपुल हु आर पैरालाइज टाइप, मतलब हु कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि चल नहीं सकते, माजूर टाइप के, तो वो लोग सिर्फ, दे आर ओनली सच टाइप ऑफ पीपुल हु आर सिटिंग एट द विंडो सेट. कुछ ही लोग जो कि सिर्फ चल नहीं सकते हैं, वही सिर्फ खिड़कियों पे बैठकर मेरा तमाशा देख रहे हैं. For the best of the sight is all allowed at the Sambals gate, because for the best vision of mine, ठीक है, all have been allowed at the Sambals gate. Sambals gate is a place where the execution has been done. Sambals gate जहां पे जैसे कह लीजिए आप फांसी लगाई जाती है या सर कलम किया जाता है, लोगों को फांसी दी जाती है या मारा जाता है, तो वो जगह उसको क्या कहा जाएगा, Sambals gate, ठीक है, जहां पे एग्जीक्यूशन होता है. तो फॉर माई बेस्ट विजन दे ऑल हैव बीन अलाउड टू द सैम्बल गेट. सबको कह दिया गया है कि पेट्रियट का अगर तमाशा देखना है इस पर्सन का, तो तुम लोग कहां चले जाओ, सैम्बल्स गेट पे असेंबल्ड हो जाओ. तो ऑल हैव बीन अलाउड टू द सैम्बल्स गेट. आई थ्रो इधर हेयर मीन्स थिंक और बिलीव. आई थिंक दे हैव बीन ऑल अलाउड टू द सैम्बल्स गेट. आई गो इन रेन एंड मोर देन नीड्स आर रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड. I was moving in the rain. The rain was falling and I was moving more than it needs. मतलब they have taken me through a long path. They are taking me to the Sambals gate. They are taking me for the execution. वो लोग मुझे मारने ले जा रहे हैं. But they are taking me from the long route because more than I had been needed. They are moving. Let me move. जितना जरूरी है उससे ज्यादा वो लोग मुझे चला रहे हैं in the rain. ठीक है, इन ऑर्डर टू गिव मी टॉर्चर. मुझे टॉर्चर देने के लिए और मुझे ट्रबल देने के लिए वो लोग बारिश में और ज्यादा मुझे लंबे लंबे रास्ते से ले जाके टहला रहे हैं. और रोप कट्स बिहाइंड माई रिस्ट एंड आई थिंक बाय फील माई फोरहेड्स ब्लीड फॉर दे फ्लिंग whosoever have mind stone at me for my ear misty. And my wrist had been tied with a rope
जो हाथ हैं उसके दोनों कलाइयां जो हैं वो पीछे करके इस तरीके से बांधी गई हैं, पीछे करके विद अ रोप, एंड रोप वॉज तो टाइटली टाइड, इतनी टाइटली उसको टाइट किया गया रोप को, दैट इट हैज कट द रिस्ट ऑफ द पेट्रियट। उसने पेट्रियट की जो रिस्ट है, कलाई है, उस तक को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। और ही कैन फील दैट हिज फोरहेड, माथा, फोरहेड इज ब्लीडिंग बाय फील, बिकॉज whosoever have mind, मतलब जिसके समझ में आया, they have thrown a stone over me for my ear misdeed, मेरे बैड इविल्स के लिए, बैड वर्क के लिए, इविल डीड्स के लिए, ठीक है। जिसके समझ में आया, साल भर में जो भी उनको लगा कि मैंने बैड वर्क किया, इविल डीड किया, साल भर में लोगों का एटीट्यूड इतना ज्यादा चेंज हो गया कि उनको लगा साल भर में मैं बहुत ज्यादा मैंने बुरे कारनामे किए, तो साल भर के अंदर लोगों के एटीट्यूड इतने ज्यादा चेंज हो गए कि लोग मुझे टॉर्चर दे रहे हैं। They are taking me to the execution. For the execution, they have tied a rope behind my to my wrist, and it had cuts my wrist, and I can feel that my forehead is bleeding. क्योंकि जिसके समझ में आया उसने मुझे पत्थर खींच के मार दिया। Thus I entered and thus I go. So patriot is referring the time when he entered the city like a hero, like a patriot, like a celebrity, and now he is leaving the city, leaving the town, ठीक है, and he is moving over the street, leaving the town like a criminal. तो thus I enter like a hero and thus I am moving like a criminal, ठीक है। इस तरीके से मैं इस सिटी में इंटर किया लाइक अ हीरो। अब मैं इस सिटी से ले जाया जा रहा हूं एग्जीक्यूशन के लिए, एक क्रिमिनल के लिए। लोगों का एटीट्यूड क्या है कि साल भर में इतना ज्यादा चेंज हो गया कि एक साल पहले ही वो मुझे इतना ज्यादा वार्मली वेलकम कर रहे थे और साल भर में ही वो मुझे एग्जीक्यूशन के लिए ले जा रहे हैं। इन टाइम्स पीपुल हैव ड्रॉप डाउन डेड, मतलब इन टाइम्स रिफर्स टू विक्ट्री, इन ऑब्टेनिंग विक्ट्री, ठीक है। पीपुल हैव बीन ड्रॉप डाउन डेड, लोगों की जान चली जाती है, ठीक है। लोग देश के लिए लड़ते लड़ते या किसी वॉर में लड़ते लड़ते, विक्ट्री लेते लेते वो लोग मर जाते हैं, ठीक है। एंड दे हैव बीन पेड बाय द वर्ल्ड, और दुनिया उनको क्या करती है, पेड कर देती है। अ टॉल स्टेच्यू हैव बीन मेड फॉर देम, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के हम लोग ने ट्रिब्यूट दिया हुआ है, उनकी करेंसी पे उनकी फोटोज हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी आप स्टेच्यूज देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की। तो वी आर पेइंग द ट्रिब्यूट टू देम फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर देयर हिस्टोरिक कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पेड बाय द वर्ल्ड, वी आर पेइंग देम ट्रिब्यूट। तो इन विक्ट्री व्हेन द पीपुल ड्रॉप डाउन डेड, और तो पीपुल पेड देम, पीपुल गिव देम ट्रिब्यूट। व्हाट डज thou owe me, God might question now instead, ठीक है। And when these type of people go to the God, towards the God, God might question instead that now what is remaining for me to give you, because you have taken all from this world, you have been paying, you have giving your reward, you have received your reward। आप तो इस दुनिया से रिवॉर्ड लेकर आ ही रहे हो, अब मेरे लिए आपके पास क्या बचा है, मैं अब आपको क्या दूं। द गॉड माइट क्वेश्चन, ठीक है। तो गॉड यहां पे क्वेश्चन करता है ऐसे लोगों से कि दुनिया से तो सब ले ही के आ रहे हो, अब मेरे लिए तुम्हारे पास बचे ही क्या है कि मैं तुमको क्या दूं। तुमने जो भी दुनिया में किया था उसका इनाम दुनिया ही में मिल चुका है, मैं यहां पे अब तुमको कुछ भी दे नहीं सकता। आई हैव नथिंग टू गिव यू इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। नाउ इंस्टीड, so patriot is saying, instead it is God shall repay me, I am safer so. So what the patriot is saying, that as I have been died without giving reward, without receiving tribute from that people, है ना। अब इन लोगों, मैंने तो बहुत सब कुछ किया अपने लोगों के लिए, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल टास्क परफॉर्म किया, बट आई हैव रिसीव व्हाट, आई हैव रिसीव इंडिग्नेशन, आई हैव रिसीव इंसल्ट, आई हैव बीन एग्जीक्यूटेड, है ना। उन लोगों ने क्या दिया मुझे इनाम में, उन लोगों ने मुझे इनाम में क्या दिया, जिल्लत दिया, बेइज्जती दी, इंसल्ट किया मेरी, और मुझे मार डाला। तो व्हेन आई विल गो टू द गॉड, ठीक है, आई विल बी विथ, आई विल टू द गॉड विथ एम्प्टी हैंड्स, मैं तो खुदा के पास खाली हाथ पहुंचूंगा ना। मैं तो कहूंगा खुदा मैंने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, पर मुझे बदले में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने मुझे बेइज्जत किया, मुझे जलील किया और मुझे मार डाला, ठीक है। तो इट विल
then the God will repay me for the deeds which I have done in this world for my people. तो फिर क्या करेगा, खुदा मुझे इनाम देगा मेरे डीड्स के लिए. So I am safer now. So the irony is the patriot is dying, but still he is feeling comfortable, he is feeling safer because he is moving towards God, he is going towards God who will repay him according to his deeds. जो कि खुदा उसको इस डीड्स के अकॉर्डिंग देगा, क्योंकि दुनिया ने दिया. अच्छा हुआ कि दुनिया ने नहीं दिया, क्योंकि अब खुदा उसको क्या करेगा, उसके डीड्स के लिए रिवॉर्ड करेगा जो भी उसने किया. तो ही इज फीलिंग सेफर नाउ. वो क्या फील कर रहा है, सेफर फील कर रहा है. चलो इस दुनिया से जा रहे हैं खुदा के पास, जो कि हमारे रिवॉर्ड को समझेगा, हमारे डीड्स को समझेंगे और हमको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड देंगे. होप आई एम क्लियर टू यू ऑल. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.